Yeah. So already we have done the type 1, type 2 errors. Hello? Yeah, Hello? yeah, Jay, is it Hello? audible? Yes, it is Yeah, audible. we have already done the type 1, type 2 errors. Yeah. Hello? Yeah, Jay, this is audible. Is this Yeah, clear now from? it's audible. Yes, now it's audible. Okay, So fine. now we already know about the confidence interval. We have already done confidence interval. Yeah. And we have to see a confidence interval. We know already where the range of values within which the researcher believes the true population parameter may lie. आपका कौन से मतलब दो वैल्यूज के बीच में आपका पॉपुलेशन मीन आएगा, दैट इज व्हाट यू सी विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. करेक्ट. Yes. हाउ विल यू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल? म्यू प्लस और माइनस जेड इंटू Z into साई. sigma. Sorry. दैट्स इट. तो सर ये क्वेश्चन करना है आपको. Using option portfolio data from previous example, construct this confidence interval for the population mean daily return over 250-day sample period. Use a Z distribution. Decide if the hypothesis that mu, that is mean, is equal to 0 should be rejected. So we have to find out the confidence interval here, okay? So given a sample size of this 250 with a standard deviation of 0.25. 0.25%. I think the data is already given in the backside. Standard error you need to compute. That comes to this. So, like at 5% significance level or 95% confidence interval, हमारा critical value क्या था? 1.96, correct? That is the Z score. Yeah. Hello? Z score. Yes. So Z for two-tailed. I am speaking about two-tailed, not about one-tailed. Two-tailed because it is equal to mean equal to 0. So here when equal to sign comes, we take two-tailed. Z at 0.025 confidence interval comes around 1.96. Okay. And minus Z 0.025 at 0.025 comes around minus 1.96. Correct. Can I say आपका confidence interval now population mean क्या रहेगा? How will you find out? Like what is the formula for your confidence interval? Mu plus or minus z into Z psi, correct? side. Mm. So what is that? Actually ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसका सैंपल मीन इज गिवन ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्वेश्चन. दैट सैंपल मीन इज 0.1. Yeah. मेन sample में दिया है ना वो 0.1% right. हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाट. सो वो पुराना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. सो आई विल जस्ट टेक द पॉपुलेशन मीन एज 0.1 here and I'll find out my confidence interval. Okay. Mu is equal to 0.25. Z 1.96 into psi 0.0158. अब इसको आप Okay. करना Okay. सॉल्व करें तो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता. दैट विल बी 0.069%. Your mean lies between this population mean. Okay. Okay, हो गया. Mm. Fine. So 95% you're confident that your mean lies between this. Okay. Okay. Yeah. एक सेकंड.
Distinguish between a statistical result and an economically meaningful result. Statistical significance does not necessarily imply economic significance. That means something which is statistically significant is not necessarily economically significant. For example, we may have tested a null hypothesis that a strategy of going long all the stocks, that means if you want to hold the stocks for a long period of time to get benefit from them, going long all the stocks that satisfy some criteria and shorting all the stocks that do not satisfy the criteria resulted in returns that were less than or equal to zero over a 20-year period. तो क्या बोल रहा है सर वो? हम लोग एक null hypothesis कर रहे हैं. We may have tested a null hypothesis. Okay. That a strategy of going long, that means you have some SBI stocks and you want to go long with that. That means you want to hold for a long period of time and get the benefit from the increment in the price of this. That satisfies some criteria and shorting all the stocks. That means ये कोई criteria satisfy कर रहा है and you want to short them and उसका कोई criteria नहीं है. Okay. एक इसको लॉन्ग इसको होल्ड करने का क्राइटेरिया, इसको बेचने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी बेच सकते हैं. रिजल्टेड इन रिटर्न्स दैट वेर लेस देन और इक्वल टू जीरो. आपको जो भी रिटर्न्स आया वो लेस देन या इक्वल टू जीरो था ओवर 20-year period. Assume we have rejected the null in favor of alternative hypothesis that the returns to the strategy are greater than zero. As you know this one. Okay. null अगर बोलता है कि एसबीआई को लॉन्ग करने का जो स्ट्रैटेजी क्राइटेरिया है कुछ एंड शॉर्ट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं और मेरे को रिटर्न्स आया है लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ए पीरियड फॉर ए स्पैन ऑफ 20 years आई हैव सीन दिस. ओके. एंड alternative hypothesis will be that it is greater than zero. Correct? Yeah. Hello? Yes. This is from the statistical point of view. This does not necessarily mean that investing in that strategy will result in economically meaningful positive returns. Several factors must be considered. Something which is statistically significant is not necessary that it will be economically significant for you. Now, one important consideration is transaction cost. Once we consider the cost of buying and selling the securities, we may find that the mean positive returns to this strategy are not enough to generate positive returns. मतलब जो आपका cost लग रहा है वो आपका benefit आपका जो benefit आ रहा है उससे वो cost से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका वो security hold करने का benefit है. And also we need to consider taxes, which are another factor that make a seemingly attractive strategy a poor one in practice. Okay. मतलब टैक्सेस आर टू बी सीन कि मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है क्या, वो जो रिटर्न्स आ रहा है वो टैक्स डिडक्टेबल है क्या, कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा, ये सब हम देखते हैं. देयर आर मेनी लाइक सिक्योरिटीज वेयर बाय द गवर्नमेंट गिव्स यू टैक्स एग्जेम्पशन आल्सो. So a third reason, that's what they're saying, what factors you need to consider for making an investment. Third reason that statistically significant results may not be economically significant is risk. Statistics में risk वगैरह नहीं है, economics considers it. Okay. So in the above strategy we have additional risk from short sales. They may have to be closed out earlier than in the test strategy. That means short sales का मतलब कि आपको immediately बेचना है. कम में बेचना पड़ रहा है तो क्या होता? If you sell at lower price you are at loss ना? Yes. Since the statistically significant results were for a period of 20 years, it may be the case that there is significant variation from year to year in returns from the strategy, even though the mean strategy return is greater than zero. Variation हो सकता है. So variation in returns from period to period is an additional risk to the strategy, whether to apply that strategy or not. So that is not accounted for in our test of statistical significance. मतलब statistics का अपना एक अलग way है चीजों को लेने का और economics का एक अलग व्यू पॉइंट है कंसिडर करने का. रिस्क इज नथिंग हियर. मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट हम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, खाली हम लोग ये देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट में एक नल बनाते हैं, हाइपोथेसिस एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं और अपना एक वे है उससे अपन डिराइव करते हैं. इकोनॉमिक्स का ऐसा नहीं है, वो रिस्क भी देखता, वो टैक्सेस भी देखता, वो रिटर्न्स भी देखता, वो बहुत सारे फैक्टर्स देखता. करेक्ट? Yeah. So any of these factors would make committing funds to a strategy unattractive, even though statistical evidence of positive returns is highly significant. मतलब आप statistically derive कर लिए, prove कर लिए कि you will get positive returns, but even though वो statistics viewpoint बहुत important है, but economically देखेंगे economics के viewpoint से that may not be attractive.
So by the nature of statistical test, a very large sample size can result in highly statistically significant results that are quite small in absolute terms. But the p value as it relates to hypothesis testing, मैं आपको p value के बारे में कल भी बताया था. आप ये रीजन में रहते हैं एक्सट्रीम, मतलब more a Yeah. bigger confirmation that you can reject the null hypothesis, correct? Yes, yes. Hello. Yes, Hello. yes, Jan. Yeah. So a bigger confirmation that you can reject the null hypothesis, correct ना sir? Yes. बताया था आपको. Okay. हाँ, So p value, the probability of obtaining a test statistic that would lead to a rejection of null hypothesis. क्या बताया मैंने आपको? P value is the probability, chance of obtaining a test statistic. टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या रह सकता है आपका? आपका P. कुछ भी मीन, ओके, Okay. हाँ, वेरिएंस, यही तो होते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक. दैट वुड लीड टू ए रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस. मतलब आपको ये देखना है कि आपको रिजेक्ट कर, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका प्रोबेबिलिटी बताएगा. दैट मींस यू आर ऑब्टेनिंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक. सो देयर इज सम चांस और प्रोबेबिलिटी of obtaining that test statistic. That test statistic which has some probability of obtaining that test statistic, whereby some probability is there of obtaining it, would lead to a rejection of null hypothesis. Now assuming the null hypothesis is true, it is the smallest level of significance for which the null hypothesis can be rejected. मतलब डीपली आप देख रहे हो, यहां पर आप इधर पर ही आके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहे. पी वैल्यू क्या बोलता है? आप डीपली, आपका मतलब एग्जैक्टली आप और डीपली जाके देख रहे, तो यहां पर 100% रिजेक्शन होना ही है ना सर? Yeah. So for one tail test, p value is the probability that lies above the computed test statistic. So this is one tail. For example, if I take this, p value यहाँ कहीं आता, टू टेल में यहाँ कहीं आता, दोनों जगह करेक्ट, दोनों भी रिजेक्शन रीजन में रहता वो. The p value is the probability that lies above the positive value and below the negative value. ठीक है. So अभी हम लोग उसका एग्जांपल देखेंगे. Consider a two-tailed hypothesis test about the mean value of a random variable at 95% significance level where the test statistic is 2.3. क्या है सर वो? 2.3 test statistic. Okay. वो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या रहता सर? Mean value. Maybe anything, ना? Mean. आपका z स्कोर आप जो निकालते हैं ना, हाँ. अपन Okay. आप नहीं सॉरी, टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू z वैल्यू रहता है. ओके सॉरी. Critical and Z value, ना? हाँ Critical ओके. value is greater than test value. Test statistic is greater than critical value. Fine. टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोग फाइंड करते हैं सर, जिसके बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, करेक्ट? Yeah. तो आप वो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो फाइंड करते, कल अपने क्वेश्चन में 6.33 आया था, दैट वाज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू. बेस्ड अपॉन दैट डिड यू काइंड ऑफ रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और नॉट? यू रिजेक्टेड. Yes. हाँ, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या कैसा फाइंड करते हैं आप? Sample statistic minus hypothesis value by standard error. म्यू माइनस like x bar minus Minus म्यू by बाय साइज. ओके. yeah. आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या क्या रहता सर? Z स्टैटिस्टिक भी रह सकता है, T स्टैटिस्टिक भी रह सकता है, F स्टैटिस्टिक्स भी रह सकता है. हेलो. Okay. हाँ, हम लोग कल देखे थे ना सर, परसों डिस्कस किए थे. Okay. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट Z स्कोर?
वही है ना, z स्क्वायर x माइनस x माइनस म्यू बाई साई, म्यू दैट्स बाई व्हाट। साई। या तो आपका ये आपका ये टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या रह सकता है? z भी रह सकता है, t भी रह सकता ठीक है। है, बेस्ड अपॉन द सैंपल साइज साई। एक्सेट्रा। ओके। या तो अगर आपका z वैल्यू सपोज कुछ आया, आप उसको किससे लाइक कंपेयर करते हैं? क्रिटिकल वैल्यू से टेस्ट। हाँ, at some significance level, suppose you find out your z value, okay? वो z वैल्यू जो भी आता है आप उसको क्रिटिकल वैल्यू से, आपका जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक आता है उसको क्रिटिकल वैल्यू से चेक करते हैं। हाँ। अगर ये बड़ा है, अगर ये ज्यादा है बोले तो रिज डेफिनेटली यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, करेक्ट? यस। सर एक सेकंड। सो पी वैल्यू आपका क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है कि मोर लाइकली वेदर आर यू गोइंग टू रिजेक्ट द नल रिजेक्ट। हाइपोथेसिस और नॉट। ओके। या सो पी वैल्यू क्या बताता है हमारे को? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द लाइक कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे को बताता है कि मोर लाइकली, ठीक है ना, कि आप रिजेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसमें एक पॉइंट लिख देता हूं। अगर आप एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हो, करेक्ट? या और ये क्या बताता है? एरिया बताता है, रिजेक्शन रीजन। ओके। यस। सो दीज हैव टू नो, दीज हैव ए नोन, इनका एक नोन एरिया होता है। एंड ये आपको क्या हेल्प करता है? टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल, that will tell you if your results are due to chance or if your results are due to your theory being correct. Okay. So what does this say? These areas would say, will help you to calculate the probability ओके। or p value that tells you if your results are, is it by chance or is it by theory? yeah, or by chance or by or due to your theory being correct. The larger the test statistic, the smaller the p-value, the more likely you reject the null hypothesis. जितना बड़ा, the larger the test statistic, okay? ओके। मैं बताता हूँ, the smaller the p-value, the more likely you reject the null hypothesis. अभी देखते हैं हम लोग कैसा। अभी आप यहाँ पर देखो सर, आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है? जेड स्कोर 2.3 आया। ओके। ये क्रिटिकल वैल्यू आपका आपका ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स है, 1.96 फॉर टू टेल्ड, करेक्ट? So 2.3 is greater than your 1.96 or not? यस। So you reject the null hypothesis, correct? या So if we consult the Z table, we find the probability of getting a value greater than 2.3 is, अगर आपको Z टेबल देखते हैं आप और आपका जो वैल्यू है 2.3 से ज्यादा होना है तो 1 माइनस ये करके देखना पड़ेगा आपको। ओके। मैं आपको Z टेबल देख, Z टेबल
नेगेटिव वैल्यूज बता रहा। Negative z values है। Okay, we got this. नेगेटिव इसका एक बता रहा। ओके, ये वैल्यूज आ गया। इसमें आप 2.3 नहीं बता रहा हूँ, आपको 2.3 देखने का है एट 0.05। इसका है क्या वर्जन? हाँ, ये नेगेटिव वैल्यूज आ रहा। माइनस अपने बुक के पीछे रहता ना सर, मैं भी देख सकते हैं। 1 मिनट अभी कर पता नहीं। ओके 2.5 है ना, देखते तो स्टैंडर्ड हाँ 2.5 हाँ है 0.9946। हाँ, एक सेकेंड सर, आ जाता अभी भी। हाँ मिला, इतना ही चाह रहा है, ये ज्यादा नहीं आ रहा। हमारे बुक पे है ना कितना है सर वैल्यू? 2.5 पे एट 0.05 ना 0.9946। इधर 9893 बता रहा। 9893 2.5 ना, z value at 2.5 2.3। 2.3 at 0.05 is 0.9906। 9893 है यहाँ पर। -9893 आई थिंक यहाँ इसमें हाँ मिल जाता हो क्या? ये क्या है? जीरो पॉइंट जीरो फाइव। हाँ मिल जाता है अभी। हाँ सर, कितना है हमारा वो? 2.3 ना। एक सेकेंड सर। तो 2.3।
at 95% significance level, confidence interval, sorry. 95.05. ये 0.05 है ना? 0.9906 आ रहा है, इसको कैसे आया फिर वो? मैं वही बोला था 0.0096 है, बुक में भी वही है। अच्छा, उन्होंने कितना बता रहा? 9893 बता रहा ना? From where did you got 9893? 8 minute. 9893? एक सेकेंड If सर, 95%, okay. एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 99% का दिया है क्या? एक सेकेंड सर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। 1.9 अपना जेड वैल्यू किसके, कौन सा कितना है सर इसमें अपने को जेड? ये 1.96 में प्लस और माइनस 1.96. क्रिटिकल वैल्यू। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है 2.3. अपन हम्म ये जो है अपना 2.5 है। 0.9893 तो यहाँ पर आ रहा। एक मिनट 2.3. अच्छा, ये अपने को पी वैल्यूज भी बताता शायद डायरेक्टली। टू पॉइंट थ्री ना? टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिए तो कहाँ से करते? अच्छा, ये टू टेल टेस्ट है ना? या तो टू टेल्ड बोले तो अपने अपन 0.025 लेते ना? बाय 2. हाँ, ओके ओके. हेलो। या 0.025 लेते अपन तो 1.96 आता ना 0.025 पर। ओके. तो अपने को 0.025 में देखना। 0.025 मतलब 0.02 में ही देखना। तो ये मेरे को 0.9898 आ रहा, 0.9898। थोड़ा डिफरेंस आ रहा, लेकिन ये कहाँ से लिया कि बता रहा भी नहीं। 0. एक सेकेंड सर, मैं टेक्स्ट बुक में पीछे देख लेता हूँ। में हाँ, 0.0 मिल गया मेरे को जेड वैल्यूज का टेबल। लास्ट. दिया सर, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया।
क्यूमुलेटिव जेड टेबल जो पूरा का पूरा वैल्यू लेता। हम्म एक ही टेबल है अपने बुक में, दैट इज क्यूमुलेटिव जेड टेबल। क्योंकि जेड टेबल टी टेबल सब है। मतलब वो एग्जैक्टली आपका जेड का जो वैल्यू है ना, हाँ 95% जो भी है वो 0.9893 बता रहा है 2.3 पे करेक्ट। 2.3 पे व्हाट सर 2.3 0.00 जो है ना 9893 आ रहा, देखो आप। हेलो, या आप क्यूमुलेटिव जेड टेबल देख रहे ना? हाँ क्यूमुलेटिव जेड टेबल ही देख। तो वो पूरा का पूरा पूरा जोन जो भी है पूरा एरिया लेके वो जेड पे एग्जैक्टली जो वैल्यू बता रहा वो कितना है? 9893 एक मिनट। 2.3 पे देखो सर, हाँ 2.3 पे देख लो 9893। 0.9893। ओके एट जीरो ही देख रहा ना 0.0 मेरे को 2.3 पे एग्जैक्टली दैट इज कोइंसाइडिंग विद 0 हाँ 9893। ओके सो एग्जैक्टली एट 2.3 देख रहा इज हाँ नॉट एग्जैक्टली 2.3 देख रहा। हाँ इज नॉट काउंटिंग एनी 0.25 0.025 और 0.05। नो नो। ओके हाउ कम हम्म अब greater than 2.3 z value okay। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक मैसेज आया। okay। कि ये 2.3 0.4893 0. ये अपना जो जेड टेबल है ये क्यूमुलेटिव है सर। अच्छा, एक्चुअली वैसा देखे तो आपको राइट भी रहता लेफ्ट भी रहता। ओके, हम्म तो ये क्यूमुलेटिव जेड टेबल हमको डायरेक्टली एग्जैक्टली वो टू वो वैल्यू बता दे रहा है एग्जैक्टली जहां पर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टार्ट हो रहा है वहां पर। ठीक है, हम्म तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल वहीं से स्टार्ट हो रहा ना 0.9893 2.3 पे। हम्म या यहाँ पर आपका जो 2.3 है उसका वैल्यू इज 0.9893 एग्जैक्टली। हम्म या अगर ये पूरा का पूरा जोन वही है, हेलो, हम्म ये पूरा जोन वही है। या अब मैं 1 - ये पूरा जोन निकाल दिए तो आई विल गेट व्हाट? greater than that thing 1.07%, करेक्ट? okay। गॉट इट और नॉट? हम्म या आप एक बार -2.3 देखो सर, क्या है आपका? -2.3 पॉइंट सेम है 0.0107।
वही है ना, वही बोल रहा हूं मैं आपको। आपका जो ये पूरा का पूरा 95% जो भी मतलब, सॉरी वो आपका 2.5% जो भी 0.025 कॉन्फिडेंस लेवल पे, ठीक है ना, इधर आके एंड हो रहा आपका हम्म। इधर पर। तो ये ओके। पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव वैल्यू दे हैव गिवन टू यू हम्म। 0.9893। ओके। तो वो एग्जैक्टली जीरो, ये पूरा का पूरा 0.9893 का एरिया है समझ लो। वन में से वो निकाल दूंगा तो आपको रिजेक्शन का एरिया आ जाएगा। ओके, सो सिंस इट्स ए टू टेल टेस्ट, अवर पी वैल्यू, अब आपको ये 1 - ए करके 1.07% आया, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 1.07, बिकॉज इट्स ए टू टेल टेस्ट, सो 2.14%। व्हाट इज दिस 2.14%? For two tail test, The right? probability of getting a value greater than Oh, 2.3. That one. means rejection region. That means your, you can, this is your p value. You can strongly say that you can reject the null hypothesis. That's it. Okay. Okay. चेक कर लो सर एक बार। सर आप चार्ट को एक बार प्रॉपरली चेक करो। What are you Sure. checking in the chart? No, what are you checking in the chart actually? Z value. So what is that in the content? Can you see about? Can you see that z is equal to? Yeah. हाँ, तो आपका z वैल्यू क्या है इसमें अभी? 2.5 है ना? 2.3. 2.3. That is your test statistic which you have found out. Yeah. x minus mu by standard deviation. Hmm. वो 2.3 आपका जो है उसका वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा? Okay. गॉट इट? वो कहां से स्टार्ट हो रहा? In between से. Yeah. वो आपका जो पूरा ऊपर में जो शेडेड रीजन दिया हुआ है, Mm-hmm. That hidden ये region. शेडेड रीजन में ये क्या आ रहा आपका? ये क्या आ रहा? Rejection area ना? हाँ, Right तो ये side. क्या है आपका? Z 2.3. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. दैट इज व्हाट दैट जेड दे हैव गिवन देयर ना। Hmm. तो अब ये पूरा ये जो है आपका, यहां यहां से स्टार्ट हो रहा ना आपका, मतलब क्यूमुलेटिव आपका z 2.3 है, तो 2.3 इज व्हाट? For Z value, this thing. 0.9893. Fine. तो ये पूरा का पूरा जो भी है यहां तक आप फेल टू रिजेक्ट में है, Yes. ये रिजेक्शन में है, तो 1 माइनस ये निकाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा रिजेक्ट करने का। दैट्स इट। Yeah. ओके, Yeah. ये हो गया पी वैल्यू का। और कोई क्वेश्चन है क्या? मैं देखता हूँ सर, एक सेकंड। मिल गया। कट कॉपी पेस्ट है पूरा ये CFA में, और इसमें कट कॉपी पेस्ट पूरा। प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं क्या? नहीं तो कंटेंट। पूरा प्रॉब्लम्स शेजर का मेटर में, इसमें पूरा कट कॉपी पेस्ट है। डिटेल से नहीं दिए क्या? हाँ, डिटेल से नहीं दिए क्या बोल रहे? नहीं बोल तो यही पूरा दे दिया, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया दोनों भी दोनों भी बुक्स में। ये मुझे चाहिए FRM as well as this. यस, FRM as well as this, यस। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे पास एक क्वेश्चन है शायद पी वैल्यू का, मैं देखता हूँ। Okay.
Okay. P-value, P-value. P-value. Okay. एक क्वेश्चन करेंगे. Got the 2.50. एक सेकेंड सर. 2.50. At 2.50 exactly. मिल गया. हाँ, एक सम करेंगे क्या इसका? Okay, 0.9938. Okay. इसमें भी वन टेल्ड भी रहता, एक टू टेल्ड भी रहता. एक क्वेश्चन लिखो सर, ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं. नहीं, एक सेकेंड 9.3 9.9. Or we'll do it right once. Makes sense. नहीं, अभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा हाँ, सपोज हमारा टू टेल टेस्ट है, पी वैल्यू फाइंड करने का है. ठीक है, तो पहले जेड स्कोर फाइंड करेंगे, एक्स माइनस म्यू बाई. सपोज ये आपका 9.3 है और ये आपका 8/√36 है. सपोज व्हाट डिड यू गेट? व्हाट डिड यू गेट? Value 2.25. हेलो. Yeah, 2.25. 2.25. What is the value for 2.25? What is the value for 2.25? So I think now you understood what are you doing. आपको इससे पहले क्या आया था? 3. हेलो. Yeah, 2.3 था. 2.30 में 2.3 means 2.30. Yeah. Yeah. अभी 2.25 पे exactly 0.9878. 2.2 यहाँ रहता, 0.05 यहाँ रहता, तो इसका और इसका कॉन्फ्लुएंस 0.9878. Yeah. और ये 2.3 जो है ये 2.30 है, तो 2.3 और ये 0 यहाँ पर. गॉट इट? Yes. अब आपका डाउट क्लैरिफाई हो गया. गॉट इट? Yeah. सो ये आपका 0.9878 है, तो फॉर पी वैल्यू व्हाट शैल आई डू? 1 minus this thing. ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2. चलो एक क्वेश्चन लिख लो सर, आपको होमवर्क दे रहा हूं. A researcher wishes. Okay. Researcher. Are you writing, sir? Yes. Yeah. A researcher wishes to test the claim that the average cost of tuition fees of a 2-year college is greater than Tuition. the average cost of tuition fees of a 2-year college is greater than 5,500. She selects a random sample of 36 2-year college. She selects a random sample of 36 2-year colleges and finds the mean to be 5,800. Okay. The
population standard deviation is $600. Is there evidence to support the claim? Is there evidence to support the claim at alpha 0.05? Use p-value method. Hello? 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 हेलो सर, फॉलो कर रहे क्या? हेलो?